Hi everyone, Namaste. Welcome back to Angrezi Beate with me Pallavi Jha. So today's first word is reminisce. Reminisce का मतलब होता है अतीत के अनुभवों या यादों के बारे में सोचना या याद करना अक्सर खुशी से, ठीक है? To think or talk about past experiences or memories, often with pleasure or nostalgia. Okay, nostalgia मतलब पुरानी यादों को सोच के kind of अच्छा फील करना. Okay, that is खुशनुमा memories को हम reminisce करते हैं, ठीक है? He was reminiscing about the moments he spent with his friends while looking at old photo albums. वह पुरानी फोटो एल्बम देखकर अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था, ठीक है? He was वो moments पल he spent with his friends जो उसने वक्त अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताया हुआ या दोस्तों के साथ बिताया हुआ था, that he spent with his friends, he is reminiscing them, याद कर रहा था एंड खुश हो रहा था, ठीक है? While looking at old photo albums पुरानी फोटो के एल्बम्स, looking at देखना, while देखते हुए, पुरानी फोटो एल्बम्स देखते हुए अपने दोस्तों को याद करते हुए वो याद कर रहा था वो पल एंड काइंड ऑफ खुश हो रहा था, ओके? दिस इज टू रेमिनिस, ठीक है? He was reminiscing about the moments he spent with his friends while looking at old photo albums. On the holiday, we were happy, reminiscing about memories of the beach. छुट्टी पर हम समुद्र तट की यादों को याद कर बहुत खुश थे, okay? On the holiday, छुट्टी के दिन, we were happy, हम खुश थे, we were happy, हम खुश थे. Memories, यादें, of the beach, बीच के, reminiscing, याद करके, ठीक है? On the holiday, we were happy, reminiscing about memories of the beach. Grandparents always reminisce about their youthful days. दादा दादी हमेशा अपने युवा दिनों की कहानियां सुनाते हैं या याद करते हैं या याद करके खुश होते हैं. That is to reminisce. कैसे थे वो दिन? This type of feeling ना, that is reminiscing. ठीक है? Grandparents, दादा दादी या नाना नानी always हमेशा reminisce याद करके खुश होते हैं about their youthful days. Youthful days is युवावस्था के दिन. ठीक है? So grandparents always reminisce about their youthful days. We sat together to reminisce about our old school days. हम पुरानी स्कूल की यादें साझा करने के लिए एक साथ बैठे. Old school days, पुरानी स्कूल की यादें, नहीं के दिन, okay? We sat together, हम साथ बैठे. We sat together, हम साथ बैठे. We sat together to reminisce about our old school days. He smiled while reminiscing about his childhood days. वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए मुस्कुराया. मुस्कुराया, smiled. मुस्कुराहट, smile. मुस्कुराया, smiled. वो मुस्कुराया, he smiled, she smiled. वो मुस्कुराए, they smiled. अगर एक से ज्यादा लोग हों, ठीक है? Childhood days, बचपन के दिन. Childhood days is बचपन के दिन. While reminiscing, याद करते हुए. While reminiscing, याद करते हुए, smile किया, मुस्कुराया, ठीक है? He smiled while reminiscing about his childhood days. Okay. So earlier we saw what is reminisce. इसमें हम देख रहे हैं what is reminiscent. ठीक है? तो reminisce का मतलब होता है पुरानी बातों को सोच के खुश होना या उसमें आनंद आना. That gives you a joy feeling. Now that is reminisce. Reminiscent का मतलब that serves as a reminder of something. ठीक है? Bringing back memories of something. किसी भी चीज या सामान या अतीत की याद को जो याद दिलाए उस चीज को we call it as reminiscent. Okay? This portrait of reminiscent of something. ठीक है? ये पिक्चर को देख के वो चीज याद आता है. So this portrait is reminiscent of that particular thing. Okay? For example, her voice is reminiscent of the lullabies heard in childhood. उसकी आवाज बचपन में सुनी गई लोरियों की याद दिलाती है. Okay? Lullaby is लोरियां. ठीक है? Heard in childhood. Childhood is बचपन. Heard in childhood जो हमने बचपन में सुना हुआ है. ठीक है? Her voice, उसकी आवाज is reminiscent. उस चीज का याद दिलाता है. किस चीज का? उसका आवाज सुनते ही लगता है जैसे बचपन में हम लोरिया सुनते थे, हमको वो याद आ जाता है. So that is reminiscent. ठीक है? Her voice is reminiscent of the lullabies heard in childhood. The streets of that city were reminiscent of their old neighborhood. उस शहर की गलियां उनके पुराने मोहल्ले जैसी लग रही थी. The streets से सड़क, okay, of that city, उस शहर के, of that cities, उस शहर की streets से सड़क, were reminiscent, याद दिला रही थी. किस चीज का? Of the old neighborhood. Neighborhood is आस पड़ोस. Old, पुराने, there, उनका. ठीक है? तो
जो शहर का जो गली वगैरह था तो याद दिला रहा था आस पड़ोस का। हाँ, पुराने मोहल्ले जैसे लग रहा था। ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ दैट सिटी वेर रेमिनिसेंट ऑफ द ओल्ड नेबरहुड। हर स्माइल इज रेमिनिसेंट ऑफ हर मदर्स स्माइल। उसकी मुस्कान उसकी माँ की मुस्कान की याद दिलाती है। हर स्माइल, उसका मुस्कान, इज रेमिनिसेंट, याद दिलाता है किस चीज़ का? उसकी माँ के स्माइल का, हर मदर्स स्माइल। ठीक है। हर स्माइल इज रेमिनिसेंट ऑफ हर मदर्स स्माइल। दिस म्यूजिक इज रेमिनिसेंट ऑफ ओल्ड क्लासिक मूवीज। यह संगीत पुराने जमाने की फिल्मों की याद दिलाता है। ओल्ड क्लासिक मूवीज, पुराने जमाने का जो क्लासिक मूवीज होता था, मूवीज इज फिल्में। ठीक है। रेमिनिसेंट, याद दिलाता है। दिस म्यूजिक, यह संगीत। ठीक है। This music is a reminiscent of old class movies. The story of the book is reminiscent of an incident from his childhood. उस पुस्तक की कहानी उनकी बचपन की एक घटना की याद दिलाती है। ठीक है। चाइल्डहुड इज बचपन, इंसिडेंट घटना, रेमिनिसेंट याद आता है इस वजह से। स्टोरी ऑफ द बुक, स्टोरी कहानी, बुक किताब। द स्टोरी ऑफ द बुक, उस पुस्तक की कहानी किस चीज़ का याद दिलाता है? बचपन में हुए एक घटना का। ठीक है। हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में हुए एक घटना का याद दिलाता है इस बुक का कहानी। ठीक है। द स्टोरी ऑफ द बुक इज रेमिनिसेंट ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। Okay, so coming to the next set of sentences, his words were reminiscent of influential politicians from the past. उनकी बातें पुराने समय के राजनेताओं की तरह प्रभावशाली थी। okay. उनकी बातें पुराने जमाने के राजनेताओं की तरह प्रभावशाली थीं। okay. उनकी बातें पुराने समय के प्रभावशाली राजनेताओं की तरह This looks right. So his words were reminiscent of influential politicians from the past. उनकी बातें पुराने समय के प्रभावशाली राजनेताओं की याद दिलाते हैं। ठीक है। पास्ट इज अतीत, फ्रॉम द पास्ट, अतीत से। इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन राजनेता, पॉलिटिशियंस मतलब एक से ज्यादा पॉलिटिशियंस, एंड देयरफॉर इट इज राजनेताओं। इन्फ्लुएंशियल इज प्रभावशाली। उनकी बातें पुराने समय के प्रभावशाली राजनेताओं की याद दिलाते हैं। इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, पॉलिटिशियंस राजनेता, एक से ज्यादा। ठीक है। हिज वर्ड्स उसके शब्द, रेमिनिसेंट याद दिलाता है। ठीक है। सो हिज वर्ड्स वेर रेमिनिसेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस फ्रॉम द पास्ट। पास्ट अतीत, पुराने जमाने का, या पहले जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस रहे होंगे, प्रभावशाली राजनेता रहे होंगे, तो इस व्यक्ति का जो शब्द है, बातें हैं, सो वैसे याद दिलाता है। जैसे पुराने ज़माने में इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वैसे याद दिलाता है। ठीक है। हर आउटफिट वॉज रेमिनिसेंट ऑफ ओल्ड फैशन स्टाइल्स। ओल्ड फैशन स्टाइल्स, पुराने ज़माने का जो क्लोथिंग सेंस था उस तरह से लगता है उसका आउटफिट। हर आउटफिट, उसका पहनावा पुराने ज़माने के स्टाइल जैसे लगता है, पुराने फैशन का स्टाइल जैसे लगता है। ठीक है। हाँ, तो उसका पहनावा पुराने ज़माने के फैशन की तरह था। हर आउटफिट वॉज रेमिनिसेंट ऑफ ओल्ड फैशन स्टाइल्स। The smell of rain is reminiscent of my school days. बारिश की खुशबू मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। स्कूल डेज, स्कूल के दिन। माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिन। रेमिनिसेंट, उस चीज़ का याद दिलाता है। रेन, बारिश। स्मेल इज खुशबू। ओके। द स्मेल ऑफ रेन इज बारिश की खुशबू। सो द स्मेल ऑफ रेन इज रेमिनिसेंट ऑफ माई स्कूल डेज। That house is reminiscent of his childhood home in the village. वह घर उसके बचपन के गांव के घर जैसा लगता है। That house, this house ये घर, that house वो घर। ठीक है। is reminiscent, किस चीज को याद दिलाता है? उसके बचपन के घर का। चाइल्डहुड बचपन, होम घर, इन द विलेज गांव में, हिज चाइल्डहुड उसके बचपन का घर जो कि गांव में था, तो वो घर उसको उसके बचपन के गांव के घर की याद दिलाता है। ओके। That house is reminiscent of his childhood home in the village. His personality is reminiscent of an old actor's personality. उसका व्यक्तित्व एक पुराने जमाने के एक्टर या हीरो या कलाकार के व्यक्तित्व की याद दिलाता है। ठीक है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व। ओल्ड एक्टर, पुराने जमाने का हीरो। रेमिनिसेंट, याद दिलाता है। हिज पर्सनालिटी,
इज उसका व्यक्तित्व, हिज पर्सनैलिटी उसका व्यक्तित्व. सो हिज पर्सनैलिटी इज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्ड एक्टर्स पर्सनैलिटी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. अगली सेशन में एक नए वर्ड के साथ मिलते हैं. ठीक है.